And we are all ready. Are you ready for the second session? Are you really excited for the second session? It's going to be more powerful than the first one. May I now invite Pastor Bill for the second session, which is going to really be a big blessing to all of you. Please put your hands together. Please rise. Okay. Okay. Let's take your seats, please. आइए सब जन बैठ जाए इस समय. Let's start the second session. आइए दूसरे सत्र का हम शुरुआत करेंगे इस समय. There's something called favor. और कुछ ऐसा कहला जाता है भलाई. Favor of God. परमेश्वर की भलाई. And the word for that is F-O-G. और इसका अंग्रेजी में अगर हम शब्द देखेंगे तो FOG करके कहा जाता है. Favor of God. इसका मतलब है कि परमेश्वर की भलाई. And what you can say when you're walking in the favor of God और आप कह सकते हैं जब आप परमेश्वर की भलाई में चलते हैं, परमेश्वर की कृपा में चलते हैं. is I'm walking in a fog. और मतलब जैसे कि हम किसी धुएं में चल रहे हैं. So I must be in the favor of God right now. तो मैं अभी इस समय जो है परमेश्वर की कृपा और भलाई में हूँ इस समय. Okay, let's open our Bibles, please. आइए अपने बाइबल को खोले इस समय. Let's go to Matthew's Gospel, chapter 12. मत्ती इसका 12वां अध्याय देखेंगे इस समय. Matthew's Gospel, chapter 12. मत्ती इसका 12वां अध्याय देखेंगे. I'm going to read here, starting at verse 33. और इसका 33वां वचन हम देखेंगे इस समय. And here's what it says: either make the tree good or his fruit good, और यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो. or else make the tree corrupt and his fruit corrupt. या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो. For a tree is known by his fruit. क्योंकि पेड़ फल ही के द्वारा पहचाना जाता है. He says, O generation of vipers, how can you being evil speak good things? यहाँ पे कहा जाता है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है. A good man out of the good treasure of the heart brings forth good things. भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है. And an evil man out of the evil treasure of the heart brings forth evil things. और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है. But I say unto you, every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा. Now here again we're talking about the power of words. और यहाँ पे हम देखते हैं कि शब्दों का सामर्थ्य. This is a word planet. और ये जो है पूरे शब्दों का या वचनों से भरा हुआ एक ग्रह है. I'll say that again. मैं फिर से कहता हूँ. This is a word planet. और ये जो ग्रह है वो शब्दों के द्वारा है. What made this earth was words. और इस पृथ्वी को जिसके द्वारा निर्माण किया गया वो है शब्द के द्वारा. And it's going to take words to rule over this planet. और शब्दों ही के द्वारा हम इस पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं. Now, this Bible says, a good man out of the good treasure of the heart brings forth good things. और इस बाइबल में से कहा गया है कि एक भला व्यक्ति अगर उसके मन में भली बातें हैं तो उसके मन में है वही बाहर उसके मुंह से निकलेगा. An evil man out of the evil treasure brings forth
evil things. और कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति हो तो दुष्ट चीजें ही उससे बाहर निकलेगी. All right, let me say something here. आइए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर. Because the devil knows the power of words. क्योंकि शैतान जानता है वचन के सामर्थ को. And he teaches it to those who are part of his army. और वो जो है उन सभियों को ये सारी चीजें सिखाता है जो उसके सेना के एक भाग है. Now, he sends out spells. और वो जो है ऐसे अलग तंत्रों को भेजता है. Now, what we talked about going over to the other side. और हमने बात किया दूसरे ओर जाने की, दूसरे भाग में जाने की. And we said how they were going to the other side and a storm came up. और जैसे हमने देखा कि जैसे वो उस पार जा रहे थे वहां पर तूफान वहां पर आ उठा. And I really believe that storm did not come up just because of bad weather. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो जो तूफान और आंधी है सिर्फ इसलिए ही नहीं आया क्योंकि वहां पर जो है हवामान खराब था. That storm was a result of bad words. क्योंकि वहां पर गलत शब्दों के द्वारा ही वो जो है तूफान और आंधी वहां पे आई. And what Jesus is teaching is that speaking wrong words will cause a storm in your life. और यीशु हमें ये सिखाता है कि अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम जो है अपने आप जो है उस आंधी तूफान को ला बैठेंगे. A lot of Christian people don't even believe that Satan uses spells. काफी मसीही लोग भी जो है वो विश्वास नहीं कर पाते कि शैतान भी कभी तंत्रों का उपयोग कर सकता है. Or sends out curses. या फिर शैतान कभी जो है श्रापों को भेज सकता है. Or divination. या फिर जो है दुर्भावना को भेज सकता है. The Bible says over in Numbers chapter 23. और बाइबल कहता है गिनती की पुस्तक इसका 23वां अध्याय में and verse 23. और 23वां वचन हम देखेंगे इस समय. Surely there is no enchantment against Jacob, neither is there any divination against Israel, according to this time it shall be said of Jacob and of Israel. निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है. Now what is he saying here? यहाँ पे देखो क्या कहा जाता That है. there's no divination that can work against God's people. और ऐसा कोई भी मंत्र या तंत्र नहीं है जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम कर सकता है. Now that's what God said. और इसीलिए ये परमेश्वर कहता है. Now God's people have to believe that. देखो परमेश्वर के लोगों को ये विश्वास करना जरूरी है. Because what Jesus did with that storm, जो यीशु ने उस तूफान के साथ किया, he rebuked that storm. और उसने उस तूफान को धमकाया. And he spoke words canceling that storm. और उसने जो है उस तूफान को डांट कर जो है पूरा इनकार दिया. Now think about this. और सोचिए इसके बारे में. If the storm was from God, would Jesus have rebuked it? अगर ये तूफान परमेश्वर की ओर से होता तो क्या यीशु मसीह उस तूफान को डांटता? No, because it wasn't from God. क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था. There was a storm in the book of Job. क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में हम उस तूफान को देखते हैं. Destroyed Job's kids. और पूरे जो अय्यूब के जो बच्चे हैं उनका नाश किया. He tells you right in the book of Job that it was the devil that was behind it. और अय्यूब के पुस्तक में उसका उल्लेख ये है कि वो शैतान के द्वारा उसके पीछे भेजा गया था. So Satan could stir up weather patterns. तो शैतान जो है वो हमारे जो बीच में जो वेदर हवामान है उसको जो है उछलवा सकता है. But God has given us dominion over this earth. लेकिन परमेश्वर ने हमें इन सारी चीजों के ऊपर जो है अधिकार दिया है. And if you look at Isaiah chapter 54, अगर हम यशायाह की पुस्तक इसका 54वां अध्याय देखेंगे,
No weapon formed against you prospered, और तुम्हारे खिलाफ कोई भी हथियार जो है वो समृद्ध and नहीं every होंगे। tongue that shall rise against you in judgment thou shalt condemn. और तुम्हारे खिलाफ जो जुबान उठाई जाएगी वो जो है उसके ऊपर जो है नाश किया जाएगा। That this is a heritage of the servants of the Lord, और यही परमेश्वर के दासों की विरासत है। and my righteousness is of you, Lord. I और- need a pen, please. I need a pen. और ये जो नीतिमानता धार्मिकता है वो तेरी है प्रभु। Okay, so what am I saying here? देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ। I'm saying that God has given us a defense against Satan's sorcery. देखो परमेश्वर ने हमें एक सुरक्षा कवच दिया है शैतान के तंत्र मंत्र को जो है रोकने के लिए। And his sorcery is very real और उसके तंत्र मंत्र जो है वो काफी जो है असली तौर पे है। in terms of his warfare. और उसके युद्ध के मामले में अगर देखें, But you have dominion over it. लेकिन ये बात है कि आपके पास उसके ऊपर अधिकार है। Over in the book of Psalms भजन संहिता के पुस्तक में and chapter 91. और इसका 91वां अध्याय अगर देखेंगे And he says in verse 5, और 5वां वचन अगर हम देखेंगे, Thou shalt not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walketh in darkness, nor of the destruction that wastes at noonday. तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। Now, notice what he says here. देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। Thou shalt not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day. और तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। Now, arrow. देखो तीर, Why does he say arrow? यहाँ पर तीर का उल्लेख क्यों किया गया है? This idea of arrow is symbolic of us being in a fight. और देखो ये तीर का उल्लेख इसलिए ये दर्शाता है कि हम एक जो है लड़ाई में, एक युद्ध में है। And I used to make a bow and arrow when I was a child. और Okay. मैं जो है मैं जब छोटी उम्र में था तब मैं भी एक तीर ऐसे बनाता था। And I used to take a tree limb और मैं जो है पेड़ के एक ऐसे फांदी को लेता and था I'd do some carving down with it और उसको जो है पूरी तरह आकार देकर and bend it and put a strong string there. और वहां पर उसको थोड़ा सा मरोड़ कर जो है उसके एक तार के समान उसे डालता And था। I would make my arrows out of straight sticks. और जो सीधे तौर पे जो काठिया होती है उसके द्वारा जो है मैं उस तीर को बना देता And था। I'd take a bottle cap and I'd bend it and flatten it. और एक बोतल के ढक्कन जो है उसको लेता था और उसको मैं पूरी तरह से जो है दबाता था And actually put some feathers on the end of the arrow. और उस तीर के आखिर में अंत के छोर पर जो है मैं वहां पर कुछ पंखों को So लगाता था I'd make my own bow and arrow. और मैं खुद के तीर को बनाता था। But I could take it back and pull it back and shoot it, and it would go a long ways. और जब मैं उसे खींच कर जो है उसे छोड़ देता था वो दूर चले जाता था। Satan mainly works at night. और देखो शैतान जो है आमतौर पर रात के समय काम करता है And he shoots arrows called spells, और वो जो है वो एक ऐसे तीर को छोड़ता है जिसे कहा जाता है तंत्र, which give demons authorization to act. जो शैतान को एक अधिकार देता है कार्य करने के लिए। So it's interesting here, he says, Thou shalt not be afraid of the terror by night or the arrow that flies by day. और इसलिए यहाँ पर उल्लेख किया गया है तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ाता है। And look what it says here in verse 8. और 8वें वचन में अगर देखें इसे, No, it says in verse 7. और 7वें वचन में देखें, 1,000 shall fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come nigh you. तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। And even in Genesis chapter 12, और उत्पत्ति इसका 12वें अध्याय में भी अगर देखें, God says, I will curse those that curse you, और परमेश्वर कहता है मैं उन्हें श्राप दूंगा जो तुम्हें and श्राप I देते हैं will bless those that bless you. और मैं उनको आशीष दूंगा जो तुम्हें आशीष देते हैं। Let me give you a story. और देखो मैं आपको एक कहानी Now, बताता what हूँ I'm trying to what I'm trying to teach right now और देखो मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ is that Satan knows the power of words. देखो शैतान जानता है वचन या शब्द के सामर्थ्य को।
said, by thy words thou shalt be justified. और तुम्हारे शब्दों के द्वारा जो है तुम्हें जो है व्यवस्थित रीति से स्थापित किया जाएगा। Said, a good man out of the good deposit of the heart brings forth good things. एक भला व्यक्ति अगर उसके मन के दिल के अंदर अच्छी भली चीजें हैं तो अच्छी भली चीजें ही बाहर आएंगी। An evil man out of the evil deposit brings forth evil things. अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो अगर दुष्ट चीजें उसके अंदर है तो दुष्ट चीजें ही बाहर आएंगी। Satan is bringing forth something evil. देखो शैतान कुछ तो दुष्ट ला रहा है, But God's people should be bringing forth something good. लेकिन परमेश्वर के लोग जो है वो एक भली चीजें लाए। So every day the children of God should pray. हर एक दिन परमेश्वर के जो बच्चे हैं उन्हें प्रार्थना You करना should जरूरी है। keep up the wall of defense around your children and around your life. और आपको जो है वो एक सुरक्षा की जो दीवार है वो आपके बच्चों के लिए सामने और आपके सामने लिए रखनी है। Here's a story that I wrote up in my book called Faith and the Marketplace. और देखो मैंने इस मेरी जो पुस्तक है फेथ एंड द मार्केट प्लेस, इस पुस्तक में मैंने इसका उल्लेख किया है। And I got permission from the gentleman who experienced this to put it in the book. और मैंने उस व्यक्ति से जो अनुमति ली कि जिसने ये सच में अनुभव किया है ताकि मैं इसमें उसका उल्लेख करूं। I think he was living in Sweden. और मुझे लगता है कि वो स्वीडन में रहते हैं। But he had a business. उनके एक व्यवसाय And था this business made some kind of pots. और वो जो व्यवसाय के द्वारा कुछ तरीके के कुछ ऐसे भाग या पार्ट्स बनाते थे Casserole pots and casserole dishes and so forth. और कुछ ऐसे कैसरो डिशेस या कुछ ऐसे अलग अलग भाग बनाते थे वो। And his customers were mainly the big box stores, the big department stores. और उनके जो ग्राहक होते थे वो बड़े बड़े जो बक्से बनाने जो रखते हैं वैसे ग्राहक होते थे। But he noticed that all of a sudden orders slowed down. लेकिन गौर करें यहाँ पर अचानक से उनकी जो ऑर्डर्स आना है वो धीमे हो गए। Not only did orders slow down, orders stopped. सिर्फ धीमा नहीं लेकिन पूरी तरह रुक गए। And so what happened is he began to question what was going on. और तब जो है उनके जहन में ये सवाल उठने लगा कि क्या चल रहा है। And orders slowed up to the fact that there were no orders coming in at all. और इतने ऑर्डर्स धीमे हो गए कि ऐसा होगा कि ऑर्डर्स आना ही बंद हो गए। Now, what is happening? अब क्या हो रहा है देखो। His inventory is piling up. और उनके जो सामान रखने की जगह है वो पूरी तरह भर रही थी। And if the inventory of a business keeps piling up, it's not long before they go out of business. और ये जो सामान अगर बनाने की जो जगह है वहाँ पर रखने की जगह है वो पूरी तरह भर जाती है तो फिर अच्छा एक चिन्ह नहीं होता फिर वो। So he's now thinking about laying off people. तो फिर वो सोचता है कि कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दे। True story. सच्ची कहानी है ये। And so what happens was a lady friend who happened to be a part of his church asked him how things were going. और एक उनकी जो महिला दोस्त थी उन्होंने पूछा, जो उनकी कलीसिया में थी, उन्होंने पूछा कि कैसे चल रहा है। They kind of shared some things that things weren't going too well right now. और वो मतलब बांट रहे थे कि जो चीजें उनकी जिंदगी में व्यवसाय में चल रही है And he couldn't understand it. और वो समझ ही नहीं सके। So what did he do? तो क्या किया उन्होंने? She invited him to a prayer meeting that Friday night. और उस महिला ने उस व्यक्ति को जो है शुक्रवार की रात की प्रार्थना सभा में उनको आमंत्रित किया। Then he came to prayer. और वो प्रार्थना में आए And he shared what was happening. और जो भी उनके साथ हो रहा था उन्होंने बांटा And they prayed with him. और उनके साथ उन्होंने प्रार्थना की। Now one of the prayers was found over in Leviticus chapter 26 and verse 7. और लेवी की पुस्तक इसका 26वां अध्याय देखेंगे और 7वां वचन देखेंगे। It said, and ye shall chase your enemies, और वहां पर ऐसा उल्लेख लिखा गया है कि तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे and they shall fall before you by the sword. और वे तुम्हारे तलवार से मारे जाएंगे 5 of you shall chase 100, और तुम में से 5 मनुष्य 100 की ओर 10,000 से खड़े रहेंगे and 100 of you shall put 10,000 to flight. और जो 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। Now, what is happening? देखो क्या हो रहा है। I want to show you a scripture that is profound. और देखो मैं कुछ ऐसे वचन को आपको बताना And चाहता हूँ this जिसमें scripture is वास्तविकता रहता है। found over in Matthew chapter 16 and verse 19. और मत्ती इसका 16वां अध्याय और 19वां वचन देखेंगे इस समय। Matthew chapter 16 and verse 19. मत्ती इसका 16वां अध्याय और 19वां वचन देखेंगे। All right, now what it says is, it says,
that, hold on, I want to give you the, okay. It says basically, whatever you bind on earth will be bound in heaven. और वास्तविक तौर पे इसका मतलब यह है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधते हो स्वर्ग में बांधा And जाएगा, whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. और जो तुम पृथ्वी पर खोल देते हो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा. Now, what I was trying to find is another translation of that same verse. देखो इसी वचन के मैं और दूसरे भाषांतर की खोज कर रहा था यहाँ पर. It's a CEV translation. और ये है CEV translation. And here's what it says. और देखो यहाँ पे उसका उल्लेख है. And God in heaven और परमेश्वर जो स्वर्ग में है, will allow whatever you allow on earth, जो तुम पृथ्वी पर अनुमति देते हो वो स्वर्ग में अनुमति देगा. but will not allow anything you will not allow. लेकिन जो जिस चीज की तुम अनुमति नहीं देते वो स्वर्ग में भी वो अनुमति नहीं देगा. So isn't that interesting? देखो ये दिलचस्प नहीं है? The responsibility for allowing or disallowing something lies with us. देखो किसी चीज की अनुमति देना या ना देना ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है. So what happened? देखो क्या होता है. They prayed that prayer और वो ये प्रार्थना करते हैं because one of the sisters was led to that scripture. क्योंकि उस कलीसिया में से एक बहन को जो है ये वचन And मिला. after they prayed that prayer, और उसके बाद जब उन्होंने ये प्रार्थना की they prayed that he would sell all inventory. और उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि जो भी बचा हुआ सामान उनके पास है वो बेच दे. So he went back the next Monday और अगले सोमवार वो गए into his business. अपने व्यवसाय की जगह पर. And all of a sudden he began to get phone calls. और अचानक से उन्हें फोन कॉल्स आना शुरू हो गया. Now he had called all the companies and asked them was there a problem with his product. और उन्होंने जो है जितने भी कंपनियां थी उनको पूछा और कहा कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स में हमारे जो सामान है उसमें कुछ समस्या है. All of them said no. सभी ने कहा कि बिल्कुल We नहीं. just haven't had any reason to order. और उनके पास कोई ऐसा बहाना ही नहीं बचा था कि ऑर्डर करे करके. Notice. देखो गौर To the करें. casual observer, this looks perfectly normal. देखो अगर हम ऐसे ही अगर ध्यान दें तो ये अगर गौर करें तो ये ठीक लगता है सब कुछ. It's not. लेकिन ये ठीक नहीं It's है. demonic. लेकिन ये एक And Satan is trying to put him out of business. देखो शैतान जो है वो ऐसा कार्य कर रहा है कि वो बिजनेस से बाहर आए, व्यवसाय से बाहर आए. So they prayed इसलिए उन्होंने प्रार्थना that की. Friday night. उस शुक्रवार की रात, Monday morning, सोमवार को सुबह orders came in. ऑर्डर्स आना शुरू हुए. All of his major clients began to order. और जितने भी उनके बड़े बड़े ग्राहक हैं उन्होंने उनको फोन करना शुरू किया, ऑर्डर देना शुरू किया. They bought everything. और उन्होंने सब कुछ खरीद लिया. He was even in the packing department helping to pack up orders himself. और जो डिपार्टमेंट में चीजों को पैक किया जाता है वहां पर वो खुद जाकर चीजों को पैक करने लगे. Everything sold out except these number 6 or whatever casserole dishes or something. और ये सारे चीजें बिक गए लेकिन कुछ एक ऐसा भाग था वो तो बच गया था. And so he was so rejoicing about everything that was done, but something came in his heart that said, you said everything would go. और कुछ वो तो आनंद कर रहे थे, उत्साह कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में कुछ आ गया कि तूने तो कहा था कि सब कुछ चले जाएगा. So he called his office manager. और उनके ऑफिस के मैनेजर को जो है And उन्होंने he said, बुलाया. you agree with me that these number 6 casserole pots are sold. और उन्होंने ऑफिस मैनेजर को बुलाकर ये कहा कि तुम मेरे साथ सहमत हो जाओ और कहो कि ये जो बचा हुआ जो भी भाग है ये भी बिक दिया जाए. The Bible says if 2 on earth agree और बाइबल कहता है कि अगर दो व्यक्ति जो है as सहमत होते touching हैं anything that they shall ask, और जो भी चीज वो मांगते it हैं shall be done for them वो उनके लिए किया by जाएगा. our Father which is in heaven. और जो स्वर्ग में हमारा पिता है उसके द्वारा. So what did he do? तो उन्होंने क्या किया? They agreed. और वो सहमत हुए. 1/2 hour later, और आधा एक घंटे बाद one of the big department stores said we need that some number 6 casserole. और वहां पर एक बड़ा एक ऐसा दुकान था और उस दुकानदार ने फोन करके कहा कि वो जो एक ऐसा भाग है वो हमें जरूरत है उसकी. And wiped the entire inventory out. और पूरा जो बचा हुआ सामान था पूरा खाली हो गया. Notice what Satan was doing. गौर करें जो शैतान क्या कर रहा था. Taking words शब्दों को ले रहा था and shooting them at every customer, और खींच कर जो है हर कस्टमर के ऊपर डाल रहा था. causing them to think certain things.
ऐसे उनको सोचने में मजबूर करता था। Over in 2 Corinthians chapter 10 and verse 3. और दूसरे करिन्थ इसका 10वां अध्याय 3रा वचन में Though we अगर walk in the flesh, we do not war after the flesh. देखो हम शरीर में चलते हैं लेकिन जो है हम शरीर से लड़ाई नहीं है हमारी। For the weapons of our warfare are not carnal, और हमारे जो लड़ाई के जो हथियार but है वो they're जैविक नहीं है, mighty through God to the pulling down of strongholds. लेकिन वो परमेश्वर की ओर से जो ऐसे बड़े बड़े गढ़ को जो है नीचे The उतरने के enemy लिए। shoots fiery darts to the mind. और जो दुश्मन जो है वो ऐसे तीर को जो है फेंकता था आग से भरे हुए जो उनके मन में। Why? क्यों? To persuade our thinking. क्योंकि हमारी सोच को जो है बदलने के लिए। As a man thinketh in his heart, जैसे मनुष्य so is अपने he. दिल में सोचता है वैसे ही वो होता है। So God has a plan for your life, और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर की योजना आपके लिए and है you're going to the other side. और आप जो है उस पार जा रहे हैं। Satan brings up a storm. और शैतान भले जो है तूफान को लाए That storm is too powerful for you to get a traditional bucket and draw the water out of the ship. और हो सकता है कि तूफान आपके लिए इतना शक्तिशाली हो कि आपकी बाल्टी हाथ में लेकर आप उस पानी को बाहर नहीं फेंक This सकते। storm takes spiritual power to stop it. और ये जो तूफान है उसको आत्मिक सामर्थ की जरूरत है। The most powerful thing in the universe is words. और इस सारे सृष्टि में सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थी चीज जो ये है वो है वचन। The word of God is the most powerful thing you can ever have. परमेश्वर का वचन ही सबसे सामर्थ्यशील जो है वो आपके पास हो सकता है। This man one time came in church, और ये व्यक्ति एक बार कलीसिया में and आया you could tell he was desperate. और वो जो है पूरी तरह आतुर था दिल में। He said, I need some prayer. और उसने कहा कि मुझे प्रार्थना की He जरूरत है। said, one of the deacons said, well, let Deacon Jones pray for you. और एक अगुवे ने कहा कि ये अगुवे जो जोन्स जो है आपके लिए He प्रार्थना said, no, करेंगे। I don't want Deacon Jones. और उन्होंने कहा कि नहीं He वो said, I डीकन want Deacon Brown to pray for और me. मैं चाहता हूँ कि ब्रदर ब्राउन मेरे लिए प्रार्थना करे। He said, okay, but why not Deacon Jones? लेकिन मैंने कहा ठीक है लेकिन क्यों जोन्स ब्रदर क्यों नहीं He प्रार्थना said, करे? because Deacon Brown has some strong prayer. क्योंकि डीकन ब्राउन जो है उनके पास कुछ सामर्थ्य प्रार्थना है। Let me help you. देखो मैं आपकी सहायता करना Deacon चाहूँगा। Brown didn't pray strong, he just prayed loud. देखो जो अगुवा जो ब्राउन है वो सामर्थ्य प्रार्थना नहीं करते थे वो सिर्फ जोर से प्रार्थना करते And थे। what has happened क्या हुआ? is God's people have substituted loud for power. देखो परमेश्वर के लोग होने के नाते जो है हमने जो है And because जोर जोर से something- बोलना मतलब हम लगते हैं सामर्थ्य है, But words have the most power. लेकिन शब्दों में ही सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। But they don't have them if you don't meet the formula. देखो हमें वो नहीं मिलता अगर हम जिससे वो आता है उसे नहीं मिलता। Mark chapter 11 verse 23. मरकुस इसका 11वां अध्याय और 23वां Whosoever वचन। shall say to और- this mountain. जो भी अगर इस पर्वत को कहे, Mountain is something impossible. देखो पर्वत दर्शाता है कि कुछ तो Be thou असंभव है, removed, वो उखाड़ा be जाए thou cast into the sea, और समंदर में डाला जाए and shall not doubt और कोई संदेह ना in his रखे heart, उनके दिल में, but shall believe लेकिन विश्वास करे that those things that he says shall come to pass. जो भी तुमने कहा वो पूरा हो, He will have वो पाएगा whatever he says. जो वो कहेगा। And I'm telling you right now और मैं आपको कहता हूँ that when those Satan worshippers send out spells, और जब शैतान जो उस तंत्र को जो है they डालता है believe वो विश्वास करते what हैं they're saying जो वो कहेंगे is going to come to pass. वो होने वाला है। Now, let's look at another place here. देखो और एक जगह पे हम देखेंगे इस समय, Over here in 2 Kings and chapter 4. और दूसरे राजा इसका 4था अध्याय देखेंगे। This is when a woman had a child और यहाँ पर एक महिला के बारे में उल्लेख है जिसकी एक संतान at थी the words of the prophet. और नबी के शब्द के द्वारा। The prophet spoke to her and said, by this time next year you will have a child. और उस नबी ने नबुवत की कि इस अगले साल इस दिन तुम्हें जो है संतान प्राप्ति This is होगी। because she built the prophet a prophet's quarters. और उसने जो है वो जो है भविष्यवक्ता के लिए जो है वहाँ पर जगह तैयार की थी And taking care of him. और उनको उनकी देखभाल करती थी वो। So what happened is she did have a child और हुआ क्या कि उनको संतान नहीं हुई थी at the words of the prophet. और नबी के शब्द के द्वारा। And then when the
child was growing up, और जब वो बच्चा बड़ा हो रहा था, and the child went out to the field with his dad और जब जो बच्चा है अपने पिता के साथ जो है and उस cried, खलियान "My में गया, head, my head." और वो कहने लगा कि मेरा सिर, मेरा And the सिर, father brought him back in, and he put his head on the mother's lap and died. और जो है पिता जो है उस बच्चे को फिर से माता के पास लेकर आए और उनके माता के गोद में जो है उसके सिर को रखा और वो She मर गया। didn't speak anything negative. उसने कोई भी नकारात्मक चीज She नहीं got किया। the child, उन्होंने बच्चे को लिया took him up to the bed where the prophet stayed when he came to town. और उस बिस्तर पर लेके गए जहां पर नबी जो है वहां पर सोते थे जब वो थे वहां Put the पर, child on the bed और उस बिस्तर पर रखा and then started to go to see the prophet. और तब जो है उस नबी को ढूंढने गए। And she told her husband, she said, get them to saddle up the donkey and so forth. और उन्होंने जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि उनको जो है गधे को तैयार करके जल्दी जो है उन्हें लेके आओ। And verse 23. 23वां वचन अगर हम देखेंगे, And he said, "Wherefore wilt thou go to him today? Is it neither the new moon or the Sabbath, pardon me?" And she said, "All is well." उसने कहा आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी और आज न तो या नहीं चांद का और न विश्राम का दिन उसके कल्याण होगा। Notice, देखो, she did not say the child was dead, उसने ये नहीं कहा कि बच्चा मर गया है, even though the child was graveyard dead. और भले वो जो बच्चा है वो पूरी तरह मृत में था। So she went quickly and passed to the man of God. और जल्दी जो है वो जो है परमेश्वर के जन को जो है वो ढूंढ रही थी। And the man of God saw her afar off and said to his servant, "Yonder be the Shunammite woman." और जब परमेश्वर के जन ने दूर से ही देखा और उसने पहचान लिया कि ये जो शनुनी जो है वो स्त्री है। And he said, "Go ask her." और उनको जाकर पूछो। He said, "Is it well with her? Or is it well with her husband? Is it well with the child?" और सब कुछ ठीक है, बच्चे के साथ सब कुछ ठीक है, उनके परिवार में सब कुछ ठीक है। And here's what she said. और ये देखो यहाँ पर क्या कहा All गया, is well. सब कुछ ठीक है। Now notice what's happening. देखो गौर करे क्या हो रहा है, She's using words. वो वहाँ पर शब्द का उपयोग कर रही है। And so the man of God sensed that something was wrong. और परमेश्वर के जन ने ये महसूस कर लिया कि कुछ तो गलत हुआ है। To make a long story short, और बड़ी कहानी को छोटी अगर हम he करें, goes to the house, और वो घर जाते हैं lays on top of the child. और वो जो है बच्चे के ऊपर जो The है child sneezes 7 times and got up. और 7 बार वो जो बच्चा छींकता है और वो उठ जाता है। Subscribe to the Friendship Club channel and hit the bell icon to never miss an update. Like, comment, and share. Thank you for watching. Visit us at thefriendshipclub.in.